A very good morning to all. आप सबका स्वागत है। कभी दोस्तों संग घर से निकलना, वो घर से निकलकर क्लास बंक करना, वो दोस्तों को दोस्ती की कसम देकर नोट्स बनवाना। बहुत याद आता है कॉलेज का जमाना, वो नए चेहरों के साथ इश्क लड़ाना, वो लेक्चर सुनते सुनते दोस्तों का सो जाना, वो दोस्तों को नए नए नामों से चिढ़ाना। बहुत याद आता है कॉलेज का जमाना। करके शरारत वो हंसना हंसाना, वो हंसते हंसाते किसी का रूठ जाना, मनाने के बहाने और उसी को चिढ़ाना, वो झूठी मोहब्बत का सच्चा फसाना, फसानों को फिल्मी समझना समझाना। बहुत याद आता है कॉलेज का जमाना। वो दोस्तों की रिमझिम और बारिश का होना, बारिश में भीगना और दोस्तों को भिगोना, वो दोस्तों की झूठी मोटी सी बातें, उन बातों में यूं ही घंटों बिताना। बहुत याद आता है कॉलेज का जमाना। वो टीचर की बातों से बचना बचाना, कैंटीन में जाकर दावत उड़ाना, वो चढ़ती जवानी वो बेफिक्र मौसम, वो यारों के संग ख्वाबों का सजाना। बहुत याद आता है कॉलेज का जमाना। On behalf of IKG PTU Amritsar campus and complete fraternity of IKG PTU family, it is a great privilege for me to extend a warm welcome to you all on the occasion of our first alumni meet. It is indeed a rare honor to have with us on the occasion our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Ajay Kumar Sharma ji, Dr. Mrigendra Bedi sir, Navdeepak sir, our campus in charge, Dr. Amit Sareen ji, the complete IKG PTU Amritsar campus faculty and staff. I welcome you all. Now, I'll be handing over to Mrigendra Bedi sir to welcome our esteemed alumni. A very good morning to all. Respected Dr. Ajay Kumar Sharma, Honorable Vice Chancellor, Engineer Navdeepak Sandhu, Deputy Director CRA, Dr. Amit Sareen, Campus in Charge, Dr. Vipul, Alumni Coordinator, Tarun Kanodia, Programmer, PTU Campus Amritsar, faculty members and alumni present over here. On behalf of PTU, I take this opportunity to welcome you all for this virtual alumni meet of PTU Campus Amritsar. Especially, I welcome all the alumni back to their campus as we are celebrating our first alumni meet. I am deeply honored to be a part of this alumni celebrations. Dear students, every one of you here today represents PTU. It's past and you are the foundation of our future. The core purpose of today's meet is to connect you back to your campus and listen to your experiences of your stint at Amritsar campus. We would also like to update you about achievements of your campus and also what all improvements can be done with your valuable suggestions and feedback. Students, we are extremely proud and lucky to have you as our alumnus, and we are defined by your achievements and by your contributions to your respective organizations and society at large. So, in a way, we celebrate our success in your achievements. So, not taking up much of your time, I again welcome our worthy Honorable Vice Chancellor, Sir, and all other dignitaries who have joined us today for this virtual alumni meet. Students, I wish you all the best for your future endeavors and hope you have a good time today. Thank you.
Thank you, Dr. Mrigendra Bedi, sir. Now I would like to request Navdeepak Sandhu, sir, to welcome our guests of today and the esteemed alumni. Navdeepak Sandhu, sir. Dr. Ajay Kumar Sharma ji, Honorable Vice Chancellor, IIT Gujarat Punjab Technical University, Dr. Sreen, Campus in Charge, Mrigender, Faculty of IKG PTU Campus Amritsar, and my very dear alumni of IKG PTU Amritsar Campus. Before starting my address, I will like to share a story on a lighter note that on August 13th, I got a call from campus in charge, Dr. Amit Sreen. He called me to give birthday greetings on my birthday. And I very straightforwardly asked him that what is my birthday gift? So he said that what you want. I said, please conduct an alumni meet at IKG PTU campus Amritsar. And he immediately agreed. And the next question was, what will be the return gift? So I said that if you will conduct an alumni meet at Amritsar campus, so we will conduct an alumni meet at the main campus. So I am thankful to Dr. Sreen that within 1 month you have gifted me my birthday gift, and I want to inform Mrigendra that we have to be prepared to give the return gift now. Alumni is a very important stakeholder of any campus, of any university, because some of the things are going to be lifelong in your CV. Your date of birth is not going to change. Your father's name, mother's name, it is not going to change. Similarly, from where you have did your graduation, post-graduation, your university name is not going to be changed. It will be lifelong in your CV along with you people. So now if somebody will ask you about your university, there will be a two kind of reactions. First will be a wow reaction. That if you told somebody that you are pass out of PTU campus Amritsar, the reaction may be, oh, that's great, you are pass out of PTU campus Amritsar. The second reaction will be on a negative side, acha, Amritsar campus to pass out ho, chalo koi gal nahi, theek hai. So the brand building of the campus, it depends a lot on the university, because the management of the university can spend on the infrastructure, on R&D, on faculty, but the things which we are producing, it is you people. When you will now, almost everybody has will have joined the corporate sector or will be about to join the corporate sector. The kind of work you will do there, with what kind of commitment you do your work, how ethically you do your work, how hard work you did in your companies. By these parameters, you will be acting as the brand ambassador of IKG PTU. आजकल ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, and they used to tell that we have shown our certificate to you. क्या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी ने अपना सर्टिफिकेट दिखाया है? तो what I feel is कि for any university, the certificate of university is the alumni. What kind of performance they are doing in the corporate sector. So that is the real certificate of any university. So instead of spending huge amount on the advertisement in the national channels, so Punjab Technical University, always under the able guidance of Honorable Vice Chancellor, prefer to promote the facilities in the campus, prefer to promote the R&D in the campus. So today, you people have gathered after passing out. So we'll love to hear your views regarding the campus, your activities during the campus, and even your suggestions. So in the end, I wish you people all stay safe, stay connected with Punjab Technical University. You can also follow me on LinkedIn and Twitter at @Navdeepak Sandhu. Also follow university at IK Gujarat PTU, and stay connected. Thank you. Thank you, Navdeepak sir, for your warm wishes. And now I would like to request our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Dr. Ajay Kumar Sharma ji, to give his blessings on our esteemed alumni. So good morning to all of you. Morning, sir. Campus Director, Dr. Amit Sreen, Navdeepak Sandhu, Mrigendra Singh, other faculty members, and my dear students.
Now you are not students, you are alumni, right? So it is a proud moment for all of us because this is the first time we are organizing the alumni meet for IKG PTU students. And especially this initiative is taken by the Amritsar campus. So I would like to congratulate especially the campus in charge or the campus director, Dr. Amit Sareen. He has taken this initiative because this university is started in 1997, but I think the alumni meet, maybe I don't know whether the alumni meet has been happened for the old students, the affiliated college students. This may happened, I think, in the affiliated colleges. But whether the university has conducted it, that it's not in my knowledge. But these classes, they have been started in this campus in 2014. So I consider as a vice chancellor that this university should not be the only affiliating university. This university should produce the product so that the PTU product, they should be in the market, and people should know that this is the alumni of IKG PTU and they recognize especially the IKG PTU. Now, our first batch of IKG PTU is going to pass off, has already been passed, like you people. So, but the initiative for the alumni meet is taken by only the Amritsar campus. So I will request all the other campus directors that they should also organize their alumni meet so that we can discuss the views with our students or our alumni so that they can give their input. Because whatever is the university, the main stakeholder I consider is the students of IKG PTU. And next, I consider the faculty is the stakeholder. And rest of the part which is available in the university, that is the sporting staff that has to support, that has to facilitate you. So, but this university growth is because of the students and because of the academics. And this campus, when I have joined, only one course was running in this campus. That was, I think, Amit can tell. So afterwards, we have started the master's program. Then we have started the BTech program in 2 disciplines. So then including the LEET admission. So they have been started in Amritsar campus. And similarly, we have tried to develop the various labs. So various labs have been developed in the campus. And still, I personally feel, still there is shortage of space in the campus and shortage of hostel in the campus. So we should have a good hostel for the students so that we can attract the good talent for this campus. Of course, the locational advantage for the Amritsar campus is there, but we can attract only the local people. So if we have a hostel, so we can attract even the outside people, they can join your campus. So I personally request the campus in charge that he should take the initiative, because I have already discussed with the Director Technical Education. So they are ready to hand over the old hostel so we can renovate it, so we can provide this facility. And similarly, you have to see about the other facilities which can be for the students, like sports facility, open gym, indoor gym. So all the facilities should be available for the students, because they instead of just going through the books, their growth should be the overall development. So for the overall development of the growth of the students, overall development of their personality, we have to train them in all the domains, not only in a particular studies. So I think you will take take the advantage of it. And another thing which I would like to share, that not only the UG and PG courses this campus is running, we are also running the PhD courses. And I would like to mention on record and appreciate the efforts of the campus director, that the placement record of the students, I think the highest package which is being given to, I think, the Amritsar campus students. So this is the
big achievement of the Amritsar campus, and that is why this time I have seen the trend that most of the students, they are attracted towards the Amritsar campus because of their placement data. So definitely you have to keep the record of it, and even rest of the faculty members, they are doing their efforts to develop this campus in a particular domain. And I would like to focus that you should be not be seeking admission for the students or the courses in on one or two directions. You have to focus in particular domains. Like now you are focusing on computer science as well as mechanical. So you should focus on a particular domain. But in future, you will find that the new policy which is coming up, you have to go for the multidisciplinary programs. And definitely you all together, the faculty is good. We are having all PhD faculty here and they can do it. So definitely they will progress and this campus will come up as a big campus in future. So and I would like to congratulate the team who has organized this alumni meet. And I am thankful that all the students, the alumni, they have joined this alumni meet. So I would like to hear their feedback also. So I can hear for one or two feedbacks I would like to hear. So the students, what they would like to say, so that we can improve further. Because your input is good for us, so that we can improve it upon. Right. So thank you, everybody. Thank you. Thank you, VC sir, for your warm wishes. And we have grown a lot after you have joined IKG PTU, and will be continuing to grow as a team. And now I would like to request our esteemed alumni, Mr. Akshay Kumar, to give his some feedback about the campus, about his experience. Mr. Akshay Kumar. Warm thanks to all the staff, teachers, and all the students who are in touch and they are pursuing their studies, right? So first I would like, I have done my graduation in 2017. So I'm working as a senior consultant in Infosys Limited. So I'm working into the cyber security domain. So I've got a good exposure to work towards this technology. So it was like a great time I spent in the Amritsar campus. So campus has very wonderful faculty and they are very cooperative. So the relation between the give me opportunity to excel further to pursue my career into the industry. So the 3 years I spent there was splendid and really helped me to excel professionally as well as personally. Apart from academic, department offers like various opportunity to enjoy your college day. They schedule trips so the students can enjoy their time with the friends, right? So also we have some industry visits. It was to Chandigarh. Some of the so yeah, we got to know the companies look like how they used to work, right? So then I got opportunity to work with Accenture after completing my studies from the college. So then I really got to know like how the things move from college to professional life, right? So so thankful to toward the call. Even still I call him to get the guidance. So he always guided me. So that's why I'm at good position now. So I really miss the college days. So I would like to convey my message to all the students who are studying. So please enjoy your time and have a enjoy your time and
get your studies and get into the good company. So and stay in touch. So like there is always a requirement in the company, so I can also refer you some of the students who have the capability to into the cyber security and other domain. So yeah, that's all. Over to you, sir. Thank you, Akshay. Thank you, Akshay, for your time and nice feedback. And we'll definitely tell your juniors to work on this, and we'll be in touch with you. Now, I would like to request Mr. Rishabh Thakur from the current 2020 pass out batch, Mr. Rishabh Thakur, to give his feedback for his juniors. Good morning, everyone. My name is Rishabh Thakur and I'm from Himachal Pradesh, district Kangra. So I have completed my graduation during this lockdown last semester. And so I just want to thank all the faculty members and BC sir, Dr. Ajay Kumar Sharma, and all the faculty members and campus in charge, Tareen sir, Tarun Kunodia sir, Mr. Bipul sir, and all the teachers. तो सर स्पेशली अगर आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा तो मेरे को लगता है कि दिन काफी लंबा चल जाएगा, क्योंकि ये 4 ईयर की जो जर्नी है काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जो इस कॉलेज के साथ है। पढ़ाई के साथ साथ सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस कैंपस की सर जो बेस्ट चीज थी ना वो थी हमारी फैकल्टी, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमें कैंपस में ये चीजें मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो उसी वक्त के लिए अच्छी है, बट जो फैकल्टी का सपोर्ट होता है, जो टीचर्स का सपोर्ट होता है, वो काफी ज्यादा हमें आज भी काफी हेल्प करता है। तो स्पेशली जब मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, तो जब मैं फर्स्ट डे अपने कॉलेज में आया था तो तरुण सर के साथ हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई। तो तरुण सर ने जो मतलब एक मोटिवेशन मतलब दी है हमें एज अ कैंपस, क्योंकि उस टाइम हमारा कैंपस एक कह सकते हैं कि ग्रोइंग एज पे था, तो हमने अपने कैंपस की ग्रोथ होते हुए खुद देखी है कि कैसे चीजें डेवलप हो रही है, कैसे हम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी फुलफिल भी होती थी। वो देख के काफी अच्छा लगता था कि हम भी उस चीज का पार्ट बन रहे हैं। अब जब टीचर हमें फोन करके कहते हैं कि देखो बच्चे, जो आप उस टाइम पे कुछ बातें करते थे, कुछ रिक्वेस्ट करते थे, तो वो सब अब चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है जो कैंपस में ग्रोथ होती है। एंड उसके बाद विपुल सर आए हमारे कैंपस में, तो विपुल सर इज लाइक अ फादर। मैं आपको कह सकता हूँ कि एक फादरली जो हमें कह सकते हैं, स्टूडेंट के को बच्चे का टीचर का तो प्यार मिलता ही है, बट सर एक एज अ जो हमें पढ़ाते थे उसके अलावा सर ने हमें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि जो अदर एक्टिविटीज में हमें कैसे पार्ट करना है, जो कहीं ना कहीं आई एम राइट नाउ वर्किंग बायजूस, तो ये चीजें मेरे को अभी भी हेल्प कर रही हैं। क्योंकि सर आप सभी को भी पता है कि जो हम चीजें पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो हमें थोड़े समय तक याद रहती है, हम उनको भूल भी जाते हैं, बट जो चीजें जो ज्ञान हम सीख रहे हैं टीचर से, जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वो हमें सिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें आज भी याद आ रही है। और जब भी कभी विपुल सर का या किसी फैकल्टी का फोन आता है, जब फोन पे लिखा हुआ आता है ना डॉक्टर IKG PTU कैंपस अमृतसर, तो सर एक ऐसा फील, एक प्राउड मोमेंट होता है अपने लिए कि एक आपको डॉक्टर फोन कर रहे हैं, एक आपको PhD टीचर फोन कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं ना सर जैसे अगर हम बैठे भी होते हैं तो एकदम खुद खड़े हो जाते हैं वहां से बैठ के कि हमें जो कॉल सर से बात अटेंड करनी है वो बाहर जाके बात करनी है। तो मतलब इतनी सर ऐसी फीलिंग आती है, मतलब अभी मैं बताता शायद थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि कैंपस का सर मैं रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ, तो काफी ज्यादा कैंपस से चीजें सीखी हैं। एंड एज ये तो सर हमारा अमृतसर कैंपस की जो मैंने यहाँ से चीजें सीखी हैं, एंड अपनी यूनिवर्सिटी का इसीलिए थैंक करना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनाइज कराते हैं ये यूथ फेस्टिवल। सर मैंने मतलब लास्ट 3 यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, एंड उसके लिए तरुण सर को थैंक्स जाता है कि सर ने मोटिवेट किया। जो फर्स्ट टाइम मैं मतलब इवन पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता था, सर क्लास में आई, सर ने कहा कि आपने सर रैंडमली हमें चूज किया, एंड उसके बाद मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली लास्ट 3 यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। तो यूथ फेस्टिवल से और स्पेशली जो हमारे यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप होते हैं उसमें सर इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जो मेरे को लगता है आज जो मैं चीजें पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा सीखा हूँ, जो आज मैं अपनी टीम को बायजूस में जो कई बार मेंटर करता हूँ, कई बार एज अ लीडर उनको कई बार रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने यूनिवर्सिटी से सीखी। जो कैंप होते हैं, समीर सर हमारे जो यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, यूथ फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, उन्होंने भी हमेशा यूथ फेस्टिवल में इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट करते हैं कैसे हम वो चीजों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसका थैंक मैं BC सर को भी करना चाहूंगा कि जो ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा, जैसे सर ने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हमें कहीं ना कहीं काफी हेल्प करती है। क्योंकि अगर कितने भी अच्छे टीचिंग में हो, अगर कितने भी अच्छे मार्क्स CGPA आ रही, बट कहीं ना कहीं अगर हम वो चीजें नहीं सीख पा रहे प्रैक्टिकल, वो हमें वो लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो मेरे को तो पर्सनली लगता है जो यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप की है उसने मेरी पर्सनैलिटी को ऑलमोस्ट 50 to 70% चेंज किया है। सो इसके लिए थैंक करना चाहूंगा पूरी यूनिवर्सिटी का और अपने फैकल्टी मेंबर्स का एंड सभी टीचर्स का। थैंक यू सर। Thank you, Rishabh, for your nice feedback. And we are really proud to have you all people of our being an alumni of IKG PTU Amritsar. Now, I would like to request Ms. Kirandeep Kaur, who is working in Softcell Global Technology,
to give her feedback about Amritsar campus. Kirandeep Kaur, our first batch student. Hello guys, am I audible? Yes, yes, you are audible. Yeah, hi guys. A very good afternoon. First of all, very good morning to all of you. Yeah, so I am from first batch student, and I'm working with Softcell Technologies Limited since 3 years, and as a pre-sales consultant here. And I would like to thank you for my teachers and my friends who spent a lot of time during the period of college time. And yes, obviously we miss a college day because there is a big difference between a corporate life and the college life. And because when we work in the corporate life and we miss our college days because we did a lot of we spent 3 years in college, and obvious our first batch. And as Resham said, we also requested a lot of things, from selecting dress of college, and a lot of requests from our teachers, like for labs, for computers. And yes, I'm very happy for because we made it happen from first batch to second batch. And only because of our teachers, their guidance, their how we can take this ahead with the discipline. And I would like to say all my juniors that and I also suggest my juniors to select one platform and focus on that, and took efforts and apply efforts on one platform. Okay, so that will help you a lot. And I would like to thank you, Kanodia sir, who always help to guide us. And because during our college life, they always support us. And yes, we also thank Rupinder sir, director sir, who always suggest and learn how to discipline and how to stay, and how you can communicate inside to outsider people. And yes, my warm wishes with all you students. And thank you so much. Thank you, Kiran. Thank you for your time and nice feedback. Sir, I would like to share one feedback from Mr. Simranjeet Singh, who is not available due to his busy schedule, but he has shared his experience. So I would just share it now. Just a second. Hello everyone, good morning. First of all, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ajay Sharma, and all the faculty members for giving me this opportunity where I can share my feelings with you all, I can share my views with you all. At the same time, I'm really sorry because I'm not there to attend this meeting. Because of some office work, I will not be able to join this meeting. So let me introduce myself. I am Simranjit Singh, working as Assistant System Engineer at TCS for last 1.5 years. I'm happy to say that I am the family member of IKGPT campus, and I was from the first batch of this campus. We are hosting this event in this pandemic situation where we can share our feelings with each other is really commendable. Is really shows the determination of this campus. I'm sure all the juniors studying at IKGPTU campus Amritsar will be happy to be the part of this IKGPTU family. Where wherever I am today, I know there are miles to go before I sleep, but still, whatever I achieved in my life is just because of this campus. It's just because of the faculty members and the staff members of this campus. They're really, they're really mean to me because
they are just like a helping hand to me. So when I talk about my journey, it was really great because I participated, I managed, I hosted the events here with the help of the staff. This campus really pushed me towards the growth, no matter how the growth is, means no matter it's personal growth or academic growth. This campus really pushed me towards the boundaries that yes, I can do this. But with the help of the staff, I was the first person who got best student award from this college. I got chance to participate, win events that are hosted at other colleges. I was the first Mr. Pavel also. So I will not take more time of you. If my juniors are listening to me, I would like to share one mantra with you that think big, achieve more. Means if you will think big, only then you can achieve more. If you will think that yes, I can do only this, then you will always do this only. If you're not even thinking to achieve that, how can you achieve it, right? So think big, then only you can achieve it. At the last, all the very best for your future, and stay home, stay safe, and stay happy. Thank you. So this was Mr. Simranjeet Singh from Tata Consultancy Services. As he was busy in his schedule, so he has shared this video. So now I would like to request Mr. Gaurav Dadwal to share his reviews, share his experience. Mr. Gaurav. हेलो, या मेरी आवाज आ रही सर आपको? जी आ रही गौरव. राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टीचर्स, गुड मॉर्निंग वाइस चांसलर सर एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स. सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है आज सबका मतलब ऐसे चेहरा देख के और मिलके एक मीटिंग पे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, हम इतने दूर एंड वही ना कॉलेज की जो याद होती है देख के वही डेज याद आ रहे हैं पुराने. अमित सर, इन सर जब हमें कहते थे कोर्ट बनवाना है बैडमिंटन, हर एक टीचर का जब मैं फेस देख रहा हूँ मुझे वो चीजें याद आ रही हैं. राइट, प्रभ किरण मैम जब हम तैयारी करी थी भंगड़े की, राइट, तो मतलब ऐसे डेज हैं. इतनी बातें जैसे ऋषभ ने कहा, इतनी बातें हमें याद नहीं आ रहा क्या क्या बात करूं क्या ना करूं, बट बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि कॉलेज अमृतसर कैंपस में पढ़ना और इतनी चीजें सीखना एक बहुत अच्छी लाइफ का एक पार्ट है. राइट, जैसे किताब होती है उसका एक चैप्टर होता है, ये इतना बड़ा एक चैप्टर है जिसे भूला नहीं जा सकता कभी भी. अभी मैं बायजूस पे करंटली वर्क कर रहा हूँ विद माय फ्रेंड ऋषभ ठाकुर. हम इकट्ठे ही सेम बैच से पास आउट हुए हैं एंड बहुत अच्छा लगता है कि यार दोनों अपने फ्रेंड्स हम सेम एक बाइक पे वर्क कर रहे हैं. बट यहाँ तक भी पहुंचने के लिए जो हमने सीखा है कहीं ना कहीं सारी चीजें कॉलेज से सीखी हैं. राइट, जो हमने यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, विपुल सर ने हमें मोटिवेट किया, राइट, अमित सर ने मोटिवेट किया, पार्टिसिपेट किया, और हर एक टीचर ने जब पार्ट लिया, राइट, वहां पे हम जब पहुंचे देखा हमने इतनी बड़ी स्टेज. एक अमृतसर कैंपस जब ग्रोइंग एज में था ना, हमने सोचा भी नहीं था कि यार हम यूथ फेस्टिवल पे जाएंगे. राइट, कंडक्ट होते हैं यूथ फेस्टिवल्स, वहां पे पार्टिसिपेट करे, इतनी पोजीशन अच्छे अच्छे, इतना हौसला मतलब हमारा ऊपर आया, बाउंस अप हुए इतने, वहां से लगा कुछ भी कर सकते हैं. एंड रिगार्डिंग टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन पार्ट, और जो हमें पढ़ाया जाता है, राइट, जिस तरीके से पढ़ते थे, एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई साथ के साथ चलती थी. ये सबसे अच्छा वे था जिस वजह से हमने सीखा था. जो हमारे प्रोजेक्टाइल स्मार्ट क्लासेस लगती थी जब भी हम पढ़ते थे, हर एक चीज का वो मतलब एक ओवरव्यू देना. पहले जैसे डॉक्टर विपुल सर हमें ओवरव्यू देते थे, बाद में किस चीज का पढ़ाते थे, राइट, वो चीजें अभी तक दिमाग में. अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत चीजें सीखी हैं. जो चीजें जो एक्सपीरियंस कॉलेज में किया है वो आई थिंक कभी जिंदगी में दोबारा होगा नहीं. जैसी जैसी चीजें हमने जो भी किया हुआ है, और आज इस टाइम पे अभी हम अगर इतने जिस स्टेज पे भी है जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, मैं अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को थैंक करूंगा कि उनके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया. राइट, ऐसी सिचुएशन में भी अगर हम वर्क कर रहे हैं, पूरा टीचर्स का अभी तक सपोर्ट रहता है. जिस दिन हमारी सिलेक्शन हुई थी बायजूस पे, सबसे पहले विपुल सर को, राइट, टीचर्स को, तरुण सर को हमने कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे हम सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि पहले भी आई थिंक मेरी सिलेक्शन हुई थी बायजूस पे बट हो नहीं पाया था. तब सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मतलब कोशिश करते रहो, होगा. तो अभी ऐसा लगता है कि यार वो चीज जो उस टाइम पे हम कर रहे थे, मतलब ये जो चीजें हमने कॉलेज में सीखी है, इतना कुछ सीखा है, राइट, जो हमने एक्टिविटीज करी है, जो पढ़ाई करी है कॉलेज में, कहीं ना कहीं वो वर्थ इट है. एंड आज हम उस जगह पे खड़े हुए. एंड सबसे अच्छी बात जो सिमरन भाई जब अभी हमारे जो सीनियर है वो अटेंड नहीं कर पाए, बट उनकी वीडियो में उन्होंने कहा कि मतलब थिंक बिग, राइट, ये चीज बड़ी छोटी सी सुनने को लगती है बट बहुत मोटिवेट करे. जब मैंने बायजूस का पहली बार इंटरव्यू दिया था ना, 200 स्टूडेंट से, हमें लगा यार कहाँ पे नाम आएगा.
हमने ऐसे गए कोई बात नहीं, चलते यार कुछ सीख लेंगे। यूनिवर्सिटी में कितनी बार गए थे, रिजेक्शंस फेस करी थी, बट यार क्या होता है, कुछ नहीं, देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाएगा। जब गए वहां पर तो देखा 200 स्टूडेंट्स में 15 स्टूडेंट्स में नेम आया। उस दिन वो बात का, उस वर्ड का समझ आया कि थिंक बिग का मतलब क्या होता है, राइट। अभी वो चीजें कुछ भी नहीं लगती, हम सोचते हैं 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, ये छोटी चीजें होती है, राइट। ये हमारी थिंकिंग तक होती है, हमारी सोच बंदी होती है। बस जब हम इस सोच से ओवरकम कर जाते हैं ना, तो कोई छोटी कोई चीज नहीं रह जाती ऐसी अभी। और ऐसे कोई भी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एज ए जूनियर्स को गाइड करूंगा कि देखिए क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यार बहुत बढ़िया, अमेज़न बहुत बढ़िया, हम नहीं कर सकते। कोई ऐसा मुकाम नहीं, कोई ऐसा मंजिल नहीं है जो इंसान हासिल नहीं कर सकता। इंसान ने चीजें बनाई इंसान के लिए, राइट। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि अपनी सोच जो है वो ऊंची रखो, राइट। कहते हैं ना कि तारों को देखो, चांद पे तो आगे गिरोगे ही, वही चीज है। तो जो भी आज जिस स्टेज पे हूँ, अपने टीचर्स की वजह से, अपने स्कूल फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम, मतलब एक क्या कह सकते हैं, टॉप टीचर टू लो, सबसे ग्राउंड अर्थ पर्सन से, राइट। इनसे हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था, वो चीजें अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही, राइट। नवदीपक सर, मरगिंदर सर जब हमारे कॉलेज आए थे, उन्होंने हमें चूज आउट किया था फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की जो कोऑर्डिनेटर से, तब उस दिन बहुत बूस्टअप मिला था। उस दिन ऐसा लगा था यार हम किसी पोजीशन पे होल्ड करते हैं, हमारी जो हमें गाइड करा गया सर ने, हमारा इंटरव्यू लिया, हमें वहां लगा यार, मतलब उस दिन से बहुत कॉन्फिडेंस अपने में आया। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, राइट। ग्रोइंग एज में जो कॉलेज को होते हुए देखा, ऋषभ ने कहा कि जैसे जैसे जो जो चैलेंजेस आए हैं, हम सर ये करवा दो, सर बास्केटबॉल का बनवा दो कोर्ट, हर एक चीज के लिए जाना, एप्लीकेशन लिखना, वो पहले बहुत एक्टिव था, पर अभी लगता है यार ऐसे ही चीजें चलती हैं, और बहुत मतलब हर एक चीज हमने सीखी है, राइट। तो जूनियर्स को यही गाइड करूंगा कि देखिए पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, एंड सोच अपनी बहुत जरूरी है। रिसेंटली अभी मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था पीछे, एंड मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक ही चीज कही थी, कहते कई बच्चों को अपना पैशन नहीं पता लगता कि हम क्या करें। उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी बात ही है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा पैशन क्या है, बट मैंने एक छोटा सा मंत्र इंप्लीमेंट किया, ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स इन लाइफ। ऐसी चीजें करो जो तुम नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज बचेगी नहीं जो तुम नहीं कर सकते, राइट। ये मंत्र ही मैं अभी यूज करता हूँ, और अपने जूनियर्स को भी यही गाइड करूंगा कि ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स, जो जितना हार्ड लगता है करके देखो, राइट। आप ऐसे मंजिल तक पहुंच जाओगे, पीछे मुड़ के देखोगे यार ये मैंने किया। ये छोटा सा मंत्र है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीचर्स यहाँ पे हमें बुलाने के लिए एंड हमारे व्यूज सुनने के लिए, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Gaurav. Thank you for your feedback, and definitely we'll be passing your mantras to your juniors to work on that. And now I would like to request our esteemed alumni, Mr. Sharandeep Singh, to give his views. Sharan, are you there? Yes, yes, sir. Yes, Sharan, please. Respected teachers and my dear friend, good morning. ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ, ਕਰਮ ਤੇ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੀਸ, ਸਬਰ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਪੁਲ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜੋ ਵਿਕਟਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਸ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਵਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੀ ਵਿਕਟ ਹੈ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਮੀ ਆਲਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। थैंक यू। थैंक यू शरण। और हमारी सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है ना। तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत लगती है, कुछ लगता है, वी ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना। और जल्दी से जल्दी भगवान से यही दुआ है कि तुम जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो जाओ, ठीक है, और जल्दी ही तुम्हारा नेगेटिव रिपोर्ट आए। नवदीपक। हाँ जी सर। आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, इट्स बीन प्लेजर सर। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। अब आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक छोटा सा मैसेज जो हमारे जूनियर्स की तरफ से है वो देना चाहूंगा। A very good afternoon to the respected principals, sir, teachers, seniors, and my dear fellows. I'm Vishwapreet Kaur, feeling very grateful to hear each of the event. I would like to share some important and happy moments in this college with our seniors for the first year of college when we took admission. Continuously, we have been guided by our seniors. It is our seniors who make us able to get adjusted in the different environment. Our seniors are really very encouraging, supporting, caretaking, and truly behave to us like a friend in this college. We learn many important things in the college only because of our seniors. They helped a lot in project work, events. I really miss them all very much. And I would like to say special thanks to my seniors for the love, support, care, and inspiration for the many years. I wish them a happy life and bright career. Thank you. This was Vishwapreet Kaur from the BTech CSE batch. Being a junior, she has given her message. One more message from their juniors I would like to share. A very good evening to everyone. My name is Kiranpreet Kaur and I feel very honored that you gave me this opportunity. And I would like to share my happy and sweet moments with seniors from the first day of college when we took admission. Continuously we have guided by them. It's our senior who enables us to adjust to a completely different environment. Our seniors are really encouraging. We learn many important things from them. They really cared for us and always treat us with respect. I wish you that you got more than you have ever imagined. But always remember where you are going, but never forget the place where you come from. We will miss you a lot and we pray for your future, for your brightest future. I would like to give special thanks to my seniors for the inspiration they have provided over the years. All the very best for your future and thanks. This was Miss Kiranpreet Kaur giving her message to their seniors. Now, I would like to request
Simranjeet Kaur. Simranjeet Kaur, if she can express her feedback. Hello. Namaste, sir. Namaste, Simran. Please give your feedback. Good morning to all of you, my respected teachers and my friends. I am Simranjeet Kaur. I have done my degree from IKG PTU Amritsar campus in BTech CSE. ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ BTech ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰੁਣ ਸਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜੌਬ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤਰੁਣ ਸਰ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 27 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 26 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲਾਸਟ 2019 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਪੁਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਵਿਪੁਲ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਰ, थैंक यू सर। थैंक यू सिमरन, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और वो 27 में से 26 नहीं, वो 27 के 27 मेरे लिए विनर थे, है ना। और हाँ जी सर, आपके स्टूडेंट हैं, हम बच्चे हैं आपके। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग और प्रयास कर रहे हैं आगे हर चीजों में उसको ग्रो करने का। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि आगे और मैं थोड़े से फीडबैक लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक अब थोड़ा सा वो कहते हैं कि रंगारंग कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो एक कल्चरल एक्टिविटीज में कुछ हमारे एल्यूमनाइज है जिन्होंने कुछ अपनी वीडियो शेयर की हैं, तो वो पहले मैं चलाना चाहूंगा। एक मिस प्रवीण है ना, प्रवीण जी ने अपना एक सॉन्ग भेजा है, लेट्स हियर इट। हाँ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो ये थी मिस प्रवीण, बीटेक सीएससी 2020 की बैच की, और शी हैज बीन वर्किंग राइट नाउ। तो अब मैं एक और चीज शेयर कर देता हूं आप सबके साथ। नेक्स्ट वीडियो, लेट्स शेयर इट बाय विश्वप्रीत जी। ਵੇਖੀ ਮਿੱਤਰੋ ਚੜਾਉਂਦੀ ਵੰਗਾ ਹੱਥ ਤੇ, ਜੱਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਜੱਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਜੱਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦੀ
सारी रहेंगी। ये थी विशवप्रीत कौर। और कहते हैं कि लेक्चर में मस्ती थी हमारी, लेक्चर में मस्ती थी हमारी भी कुछ हस्ती थी, टीचर का सहारा था दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए इस नौकरी की आफत में, कहाँ आ गए इस नौकरी की आफत में, यार वो कॉलेज ही कितना प्यारा था। तो कुछ फीडबैक एक जूनियर का मैं एक और शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ, जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हमारे साथ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर्स एंड ऑल अदर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे कॉलेज में अलुमनी मीट का फंक्शन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सीनियर्स ने अपनी अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर ली है और आज वे सभी अच्छी जॉब पर हैं। इसके लिए पहले तो मैं अपने सभी सीनियर्स को बधाई देती हूँ। ये उनके लिए और हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। आज तक आप सीनियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके अच्छे बुरे अनुभवों को आपने हमारे साथ शेयर किया है। आपने अलग अलग तरीक़ों से हमें प्रेरित किया है, और चाहे वो हमारी स्टडी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, और कॉलेज में जितने भी आयोजित फंक्शन हो, आपने सभी में है हमारा सहयोग किया है। आज आप ही की बदौलत हम इतने काबिल हुए हैं कि हम अपने कॉलेज में खुद फंक्शंस और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये कामना भी करती हूँ कि आप आगे जिस भी संस्था में से जुड़े, आप अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करें। और आपसे एक बेनती भी करती हूँ, जैसे आज तक आपने हमारा सहयोग किया है, आप हमेशा हमारे संपर्क में ऐसे ही रहिए और अपनी कीमती सलाह हमें देते रहिए, ताकि जैसे आप टीचर्स की सलाह से आपने आज इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली है, हम भी इसी तरह उनके और आपके रास्ते पर चलकर उपलब्धियां हासिल कर सकें। आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूं। धन्यवाद। ये थी मिस प्रियंका, जिन्होंने अपना एक बीइंग फीडबैक दिया और अपने जो एलुमनाइज थे उनका तहे दिल से धन्यवाद किया। तरुण, I want to add something। जी सर। सारे अलुमिनाई अपने जड़े ने काफी दस ने टीचर्स ने मोटिवेट किया, तो थोड़ा जिहा बहुत ज़्यादा मैनू फॉर्मल लग रही चीज़ां। अलुमिनाई मीट एक इवें दी मीट होंदी है जिहदे विच असीं हर पॉजिटिव नैगेटिव चीज़ शेयर करते हैं, वो चीज़ां भी अपने टीचर्स के नाल शेयर करते हैं। एक दोस्त की तरह जिहड़ियां असीं उन्हां तों चोरी कुछ कीतियां हुंदियां, टीचर्स नूं कॉन्फिडेंस लए बिना कीतियां हुंदियां। तो आई थिंक कि बहुत फॉर्मल हो गया। रेशव, गौरव, शरण, कुछ तुसीं इदां दी चीज़ां अगर शेयर कर पाओ तो डेट विल बी अ गुड थिंग। तो बाकी भी जिहड़े अलुमिनाई ने दे कैन टेक्स्ट एंड तरुण जी विल अनम्यूट देम। तो कुछ इदां दी जिहड़ियां चीज़ां हैगियां तुसीं लैके आओ, ताकि असीं जिहड़ियां टीचर्स नूं चीज़ां नहीं पता कैंपस दियां, वो कैंपस लाइफ अज असीं भी अपने स्टूडेंट लाइफ की तरह मान सकीए। तो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर करना चाहता है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। रेशव को अनम्यूट करो जी। रेशव ठाकुर को अनम्यूट कर दिया सर। नहीं, अभी नहीं हो गया सर। हो गया। हाँ, तो सर जैसे कि सर ने बताया कि मैं थोड़ा सा बताना भी भूल गया बीच में, तो ये जो जैसे आप कह रहे थे बताना भूलना नहीं है। हाँ,
बिल्कुल सर, थोड़े दोनों पॉइंट डिस्कस करने चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं, जैसे ये तो मैंने पॉजिटिव पॉइंट आपको बताया था जो हमारे कैंपस के हैं, बट कहीं ना कहीं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो चीज आई थिंक होनी चाहिए, थोड़े से ना डिसीजन मेकिंग राइट्स जो वो हमारे कैंपस के पास भी होने चाहिए, क्योंकि कई बार आप हमें कोई चीज की रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है, तो वो हम जैसे अब हमारे लिए तो वही कैंपस है ना सर हमारा, जैसा आप यूनिवर्सिटी तो चलो मानो कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं, है ना, बट सर हम तो जब कॉलेज में एक टाइप के जब आए थे कॉलेज, तो हमें लगता है यही हमारा कैंपस है, जो डिसीजन होगा यहीं से होगा, तो ना कहीं ये कई बार हमें चीज थोड़ी सी नेगेटिव लगती है अपनी, कि हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, फिर को हमारे कैंपस उसकी फाइल तैयार करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर तब को ना मतलब इतना टाइम हो जाता है कि उस चीज का जैसे इवेंट ही खत्म हो जाता है वो, या फिर उस चीज का कहते हैं मजा ही खत्म हो जाता है। तो वो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि कैंपस के पास जो हमारे डायरेक्टर हैं, थोड़े टीचर्स के पास कुछ राइट्स हो, कुछ फंड्स उनके पास अपने हो, कि वो इंस्टेंटली मतलब कुछ ऐसी चीजें आती है, तो जैसे कोई टीचर्स डे आ रहा है, तब अगर हम 3 दिन पहले रिक्वेस्ट करते हैं कुछ फंड्स के लिए, कुछ इवेंट के लिए, तो ऐसा ना हो कि 10-15 दिन उसको एप्लीकेशन प्रोसेस होने में लग जाए, तब तक वो इवेंट चल जाए। तो ये मेरे को लगता है जो फीडबैक होनी चाहिए, ये कुछ राइट्स हमारे डायरेक्टर के पास होने चाहिए, कुछ फंड्स उनके पास अपने होने चाहिए, कि सो दैट वो उनको भी थोड़ा सा यूटिलाइज कर सके बच्चों के बेटरमेंट के बिल्कुल लिए। ऋषभ, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड योर सजेशन इज नोटेड। एंड अगर मैं होस्ट होता तो शायद ये चीजें मैं वाइस चांसलर साहब की प्रेजेंस में निकलवा पाता आप लोगों से, तो लेकिन स्टिल वी विल लव टू लिसन मोर फीडबैक्स। यस प्लीज, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। और कोई स्टूडेंट अपना फीडबैक देना चाह रहा हो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कैंपस के अंदर, तो वी विल बी हैप्पी टू हियर एनीवन। यार आप लोगों ने कोई शरारतें वगैरह नहीं की कैंपस में? नवदीपक सर, गुड आफ्टरनून, अमित सरीन बोल रहा हूँ। बड़ा मुश्किल से तरुण जी से मैंने अपने आप को अनम्यूट करवाया। क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नवदीपक सर से, और ऋषभ और गौरव के जो फीडबैक हैं, तो ये फीडबैक मैं भी सर से शेयर करूंगा, ऑनरेबल वीसी सर से, और नवदीपक सर से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी शेयर करें। सर गौरव जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ गौरव बताओ बेटा। यस सर, थैंक यू सर। मैं यही अपना रिव्यू शेयर करना चाहूंगा। पहले तो मोस्टली पॉइंट्स ऋषभ ने कवर अप कर दिए, पर दूसरे एक टेक्निकल वे से देखूं कि जैसे हम जिस टाइम पे कॉलेज पे थे, तो जो इवेंट्स होते थे ना, जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, तो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के इवेंट्स होने चाहिए बच्चों के लिए, अभी से उन्हें मालूम पड़ जाए कि आगे जाके कैसी चीजें होती है, राइट। हमें अभी भी लगता है कि चीजें ऐसी हैं, अगर हमें ये कॉलेज टाइम पे पता होती ना, तो आज हम उस पर और अच्छा कर रहे होते। अभी भी हम अच्छा कर रहे हैं, बट उस टाइम पे कुछ मालूम होता तो उसे और इम्प्रूव, उसे पॉलिश कर सकते हैं इजिली। जैसे कोई मैकेनिकल्स के स्टूडेंट्स के इवेंट होते हैं, कंप्यूटर साइंस के इवेंट्स होते हैं, जो हमने कई बार कोशिश करी थी टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज करने की, बट वो ड्यू टू स्ट्रेंथ के कारण कुछ मतलब टाइमिंग के कारण हो नहीं पाता था। बट हमें लगता था कि यार हम भी कुछ कराए। हम IIM में, जो पास में IIM कॉलेज है, वहां पे पार्टिसिपेट करते थे, वहां पे कोशिश करते जितना हम कर सके। तो यही ऋषभ ने जो कहा, जो राइट्स है एंड जो बच्चों के इवेंट्स है, मोस्टली जो टेक्निकल इवेंट्स है जरूर करवाए जाए कॉलेज में, ताकि मतलब सेमिनार्स हों, बच्चों को मालूम पड़े न्यू टेक्नोलॉजी का, राइट। जो थोड़े बहुते हुए हैं वो बहुत अच्छी चीजें पहले होती रही है, बट और मैं चाहूंगा कि बच्चे और नया जूनियर सीखें, क्योंकि जूनियर्स में बहुत हमारे कैपेबिलिटी, हमसे भी ज्यादा, जहां तक मैंने देखा, हमसे भी ज्यादा शार्प है हमारे जूनियर्स। एंड मैं यही चाहूंगा कि जितने भी जूनियर्स हैं, मैकेनिकल के, कंप्यूटर साइंस के, BCA के, राइट, उन्हें यही हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक आगे लाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब पावर होल्ड करते हैं, राइट। यही मेरा रिव्यू था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौरव आप, और स्ट्रेंथ इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर स्ट्रेंथ ही तो एक स्ट्रेंथ है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, अगर आप कोई भी इवेंट अमृतसर कैंपस में ऑर्गेनाइज करोगे, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस कैन बी इनवाइटेड। So strength is not a problem. Yes, I think the students should come forward along with faculty, and initiative should be taken for organizing such events. And will definitely Amritsar team will take care in the future. Yes, thank you. Next, सर एक मेरी कंप्लेन आपसे ही है नवदीपक सर, आपसे भी है थोड़ी सी, बिकॉज जो हमारा जैसे लास्ट जो एक्चुअली मैं घंटे से वेट कर रहा था इस चीज की, तो आई वाज क्यों नहीं बोल रहा। जी बताइए ऋषभ सर। एकदम याद आ रही है, थोड़ा सा फ्लो अपना फ्लो चेंज किया। तो सर क्योंकि जो हमारा 2020 बैच था, तो हमारे इस
मतलब हमारे बैच में एक भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आई। जो हमारे पहले सीनियर थे, आपने शायद उनके लिए कुछ, उसमें 10 से 15 बच्चे ऐसे थे, अगर वो कैंपस में अगर आती तो मतलब अच्छा कर सकते थे। कई बार होता है जैसे हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वहाँ के बच्चे भी हैं, वो आपको पता थोड़ा सा कंपटीशन फिर ज्यादा हो जाता है कुछ चीजें के करके। तो इस कैंपस में इस टाइम 2020 का जो हमारा लास्ट सेमेस्टर था 7th, उसमें एक भी कंपनी नहीं आई है, हमें ही जाना पड़ा है। मतलब तो मेरे को ये लगता है कि एक तो अगर आप जैसे ऑर्गेनाइज करवा सकते हो तो वहाँ पे भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को लगे कि यहाँ पे भी कोई कंपनीज आती हैं। क्योंकि आप लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि एक भी कंपनी आई है हमारे कैंपस में। ठीक है सर, तो मतलब थोड़ा सा आप इसमें अगर इंप्रूव कर सकते हो तो बच्चों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चे से आप जो सर जूनियर्स आए ना हमारे, वो पूछते हैं कि कैंपस में कंपनीज आती हैं, तो सर हमें उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे आंसर नहीं दे पाते कि हम क्या बोलें आप, क्योंकि हमें पता है इस बार तो कंपनी कोई नहीं आई है। तो हमें ये कहते हैं कि आप तो इसकी टेंशन मत करो, आप बस अपनी तैयारी करो, कंपनी आप कोई भी जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी कैंपस में भी आएंगी तो बच्चों को मोटिवेशन भी रहती है कि चलो यहाँ पे भी कोई कंपनीज आती है, हमारे पास एक ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन है। ओके सर। बिल्कुल ठीक ऋषभ, मैं आपका इसका जवाब देना चाहूँगा आपको। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड कि ज़्यादा जो कंपनीज है वो उनके कैंपस में आए, लेकिन जब हम किसी भी कंपनी को इनवाइट करते हैं तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट दे चेक अप व्हाइल फाइनलाइजिंग एनी कैंपस फॉर द प्लेसमेंट राइट। तो अभी जैसे हम सभी बात कर रहे थे कि हमारा कैंपस, अमृतसर कैंपस इज एट एन इन्फेंसी स्टेज। अभी इफ आई टॉक अबाउट इन्फोसिस, जो आप कह रहे हो कि आपके बैच के लिए, हाँ ठीक है कैंपस में नहीं आए, लेकिन पीटीयू मेन कैंपस इज ऑल्सो योर कैंपस, इट इज ऑल्सो योर यूनिवर्सिटी। तो मेन कैंपस में इन्फोसिस ने जॉइंट कैंपस इवेंट किया, तो उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, जॉइंट कैंपस के लिए बाकी अफिलिएटेड कॉलेजेस से स्टूडेंट आता है। तो अभी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अमृतसर कैंपस में उस लेवल का नहीं है कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज को लेके आ पाएं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे अमृतसर कैंपस के स्टूडेंट हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जो भी कंपनीज हमारे मेन कैंपस में आती है वो यूज टू कम्युनिकेट थ्रू तरुण कनोडिया जी, एंड इवन मैं अमित सरीन जी को भी हर एक मैसेज जो है व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ कोई भी जब कंपनी आती है जो अमृतसर कैंपस में आ सकती हैं। जैसे अमृतसर के स्टार्टअप एसोसिएशन है, ऑलरेडी मर्गेंदर इज इन प्रोसेस ऑफ MOU विद देम। तो जो जो लोकल कंपनीज आपके पास आ सकती हैं, वी आर इन अ प्लान टू गेट टाई अप विद दोज कंपनीज, एंड डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा, तो बेटर जो है कंपनीज अमृतसर कैंपस में भी आने लगेंगी। लेकिन वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू पीपल, चाहे वो कोई भी असेसमेंट टेस्ट हो को क्यूब्स के, हर एक चीज में सर कैंपस को हम इक्वली इन्वॉल्व करते हैं एज वी डू द मेन कैंपस। सो फॉर अस देयर इज नो डिफरेंस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ, विद टाइम दैट विल बी टेकन केयर। थैंक यू। नेक्स्ट मैं ऐड करना चाहूंगा नवदीपक जी। सर ऋषभ, गौरव और जो जूनियर्स हैं बेटा, स्पेशली हमारे कैंपस के लिए और मेन कैंपस के अलावा शायद किसी और कैंपस में नहीं होगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर MS बेदी जी, ठीक है, वो 2 दिन यहाँ आते हैं स्पेशली, ठीक है, नाउ टू सी दीज, लुक आफ्टर दीज एक्टिविटीज, ठीक है, मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवनीत कौर या रवीना जी को, अगर वो अपना कोई फीडबैक देना चाहें। रवीना, नवनीत कौर, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Good afternoon to all. Am I audible? Yes, Ravina, you are audible. Okay, great. Actually, I have recently completed my BTech from IKG-PTU campus officer, and now I am doing job as a SEO at Chandigarh Allocent Lab. Actually, I am and मैं सभी के फेसेस देख रही हूँ, एंड तो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे को टाइम सारा याद आ रहा है, एंड स्पेशली सॉन्ग मतलब जब भी बैठे होते थे हम उसको बोलते थे कि यार कोई सॉन्ग सुना, कोई इंग्लिश सॉन्ग सुना कुछ, मतलब उसकी वजह से मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनना स्टार्ट हो गई थी कि यार आई ऑल्सो हैव टू सिंग दिस, वाई मैं क्यों नहीं बोल सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड या विश्वप्रीत का डांस, जब भी हम गिद्दे की प्रैक्टिस करते थे उसको बोलते थे आजा यार प्रैक्टिस कर ले, बस कर, खाना बाद में खा लेना, मोटी हो जाएगी तू, कैसे करेगी गिद्दा तू, ये वो सब चीज़ें बहुत सारा मिस कर रही हूँ मैं। एंड मैं मतलब यहाँ कंपनी में जब आई मैं, और इस कंपनी में मेरे को ना मतलब 1 मंथ मैंने सारा नोटिस किया कि कंपनी मतलब कैसे काम करती है, एंड कॉलेज लाइफ से कॉर्पोरेट सेक्टर मेरे को लगा बहुत अलग है ये चीज़ें सब।
तो मेरे कंपनी में जहाँ मैं अब काम कर रही हूँ वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती थी, मतलब बहुत ही कम रेयर, कोई साल में एक बार हो जाती है कोई छोटी सी। तो मेरे को लगा यार मैं मतलब कॉलेज में इतना हम इंजॉय करते, यहाँ पे आके मैं कैसे वो कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने ना ऐसे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, एम्प्लॉयज़ के साथ, कि मतलब कुछ करना होना चाहिए, अदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने मतलब हमने सारे बैठ के वो डिस्कस कर लिया कि ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हम कंपनी में इंजॉय मतलब वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो पहली रात को डिस्कस हो गया, सुबह आके हमने करना है। तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, तो मेरे सारा वो एक्चुअली मेरे रेज्यूमे में था कि मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो कंपनी में सारा टेंशन मेरे सिर पे डाल दी कि तुम कोऑर्डिनेट करोगी। तो मेरे को था कि अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो मेरे पे टेंशन है, तो मेरे को वो करना पड़ेगा। तो सुबह 8 बजे जाके तो मैंने वो सब चीज़ की है, ठीक है। तो सभी मेरे को बोलने लगे कि ये मतलब क्या ही केली लगी है, ये क्या चाहिए इसको कंपनी में, मतलब एक महीना हुए आए, मतलब बड़ी सारी बातें होती है जो सुननी पड़ती है आपको। तो मेरे को ना सिर्फ कनोडिया सर की सिर्फ एक ही बात याद आई थी कि जब हम यूथ फेस्ट में थे तो मेरे को सर ने बोला कि तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो, तुम गिद्दा भी करो, तुम सिंगिंग भी करो, तुम ये भी करो। 3 दिन का यूथ फेस्ट था, तीनों दिन मेरी कोई ना कोई पार्टिसिपेशन थी। वो एक नहीं थी, एक दिन में 3 4 थी कि मेरे को ड्रेस भी चेंज करनी है, मेरे को ये, तो मैं कैसे करूँगी वो चीज़ें। तो मेरे को वो था कि येस आई कैन डू इट। अगर मैं अकेली हूँ, आज के फर्स्ट फंक्शन के लिए मैं अकेली हूँ, नेक्स्ट के लिए मेरे साथ पक्का 1 या 2 जना तो मेरे साथ पक्का होगा। तो ऐसे ही हुआ, एक फंक्शन हुआ, मैंने अकेले के सारे हैंडल वगैरह किया, केक वगैरह सब कुछ कट वगैरह किया, एंड सब मेरी प्रेस कर रहे थे बाद में कि यस मतलब लड़की ने अकेले सारा कुछ हैंडल किया। देन फिर सेकंड फंक्शन आया, सेकंड फंक्शन के साथ मेरे साथ 10 जाने मेरे साथ खड़े थे, मतलब मैं अकेली गई थी आगे। देन 10 मेरे पीछे थे कि यस हम आपके साथ हैं, जो भी करना हमें काम दो, हम आपके साथ काम करते हैं। तो वो चीज़ बड़ी प्राउड वाली थी कि मेरे सारी सब कंपनी में सबसे छोटी हूँ मैं। तो मेरे सीनियर्स वो मेरे से पूछ रहे थे कि मतलब मैम बताओ कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, कितना बजट रखना है, कैसे वो सीरियस सारी हैंडल। तो वो मेरे को चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि यार मेरे से इतने ज़्यादा सीनियर लोग हैं, मेरे से आगे गाइड ले रहे हैं कि कैसे कैसे। तो वो मेरे को चीज़ लगी कि अगर मैंने 4 साल में अगर मैंने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी किया तो वो मैं आगे फर्दर रखा है और मैं उसको मतलब इंजॉय के साथ काम किया। उसके बाद सारे कि ये है कि हफ्ते के बाद ये चीज़ इवेंट आनी है तो हम काम कंप्लीट करेंगे, तो फ्राइडे को टाइम फ्री मिलेगा तो हम ये चीज़ इंजॉय करेंगे। तो वो चीज़ बड़ी डिफरेंट सी लगी एंड सारे इंजॉय करते हैं कंपनी में कि रीना ने आके सारा कुछ चेंज कर दिया। तो वो चीज़ अच्छी लगी मेरे को। एंड मतलब जूनियर्स को यही है कि स्टडीज तो आप करोगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आप पूरा अपना दो कि मतलब इंजॉय करो आप अपनी कॉलेज लाइफ को, फ्रेंड्स के साथ जितना इंजॉय कर सकते हो आप करो, ठीक है। कॉलेज अटेंड करो, बंक कभी कभी कर लो, इट्स ओके, वो चलता है कभी कभी, बट हाँ वो भी कॉलेज का पार्ट है, वो भी इंजॉय करो। बट हाँ स्टडी के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज जरूर करो। आपको नहीं पता आपके अंदर क्या क्या टैलेंट छुपे हैं, आप उसको चीज़ को करोगे तो आपको पता लगेगा कि यस आई हैव दिस टैलेंट। मतलब अब मैंने वो फेयरवेल टाइम भी बोला था, मेरे को नहीं पता था मेरे पे क्या क्या टैलेंट्स है, मेरे को अभी पता लगे कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस, मतलब आई कैन डू मेंटोर। तो ये सारी चीज़ें कि सब चीज़ें आप हर एक चीज़ आप हैंडल कर सकते हो, जस्ट अपने अंदर ये रखो कि आई कैन डू इट। मतलब कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं सोचना है कि हाँ हम कम हैं, उसके पास ये टैलेंट है मेरे पास क्यों नहीं है। जब मैंने था कि यार प्रवीण इंग्लिश सॉन्ग गाती है तो मैं क्यों नहीं गा सकती, तो फिर मेरे को बाद में पता लगा कि मैं अगर इंग्लिश सॉन्ग नहीं गा सकती, हिंदी तो गा सकती हूँ ना, मैं ये पंजाबी सॉन्ग गा सकती हूँ ना, मैं उससे अच्छा गा सकती हूँ, उससे मतलब थोड़ा सा कम, मतलब जैसा भी है आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, पता ही नहीं आपको कौन कौन सा टैलेंट है। तो प्लीज़ जो भी है आप उसको एंजॉय करो पूरी लाइफ को, और टीचर्स के साथ मस्ती करो, स्टडी करो। अब सीरियसली मिस करोगे कॉलेज के बाद कि ऐसे मैं सीरियसली अभी मैं सभी के फेसेस देख रही हूँ एंड मेरा मन कर रहा है कि यार प्लीज़ वो थोड़ा सा 1 साल पीछे चले जाए, वो हम सब मिले इकट्ठे। सीरियसली मिसिंग यू ऑल। ਰਵੀਨਾ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ तो इवन अगर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ only a good batsman can't make a place until or unless he is a good fielder or he is a part-time bowler. So obviously with study all these things are very important.
तो एक मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੱਸਣਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ B.Pharmacy ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪੀਜੀ ਮੇਟਸ ਰੂਮਮੇਟਸ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ह्यूमन वैल्यूज का लेक्चर ही बंक कर लिया मेरा मतलब कि वो हम खुद भी पढ़ सकते थे मतलब वो नहीं है लेक्चर हम अटेंड कर सकते कभी कभी था कि कभी मन नहीं करता कभी नींद आ रही है एक्चुअली वो लास्ट में था ना ब्रेक के बाद लेक्चर होते थे नींद आती थी वो तो वो चीज़ मेरे को था कि सोना नहीं है तो उसके साथ आपका पता नहीं लेकिन हमारे टाइम पे तो हम कभी कभी फैकल्टी को कॉन्फिडेंस में लेके ही बंक कर लेते थे भी खुश हम भी खुश तो चलता था तो इट्स गुड और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वॉलंटियरली कोई आगे आए कोई और स्टूडेंट अपना फीडबैक शेयर करना चाहता हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो अपने कॉलेज डेज का प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दे सर मैं करूं सिमरन जी प्लीज 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 सर एक बार ना मतलब मोहित और मनमोहित का तो आपको पता ही है मैंने हम तीनों ना मिलके बहुत शरारतें करते थे क्लास में भी मैम को भी मतलब तंग कर देते थे एक बार ना लंच टाइम के बाद ना भी कोई लेक्चर नहीं लग रहा था और मोहित ना तंग करने लगा और जो हमारी उधर लेबोरेटरी की तरफ सीढ़ियां है ना उस तरफ ना एक सर थे IMM के वो मोहित ना थप्पड़ मार के ना मुझे दो भाग गया तो मैं उसके पीछे पीछे भागी तो वो छुप गया जाके और मैं ना थम के पीछे छुप गई उसके बाद ना वो सर आ रहे थे मुझे लगा मोहित होगा मैंने ना सर को डरा दिया वो सर का फेस देखने वाला था मेरा ख्याल बाकी अपने जूनियर्स को भी गाइड करना हो कि आप आने वाले को थोड़ा डरा के रखना है कैंपस अपना फिर ये दोनों मेरे से नाराज हो गए तू पागल है वाली कोई बात नहीं और बताइए जी और कोई एक्सपीरियंस सर इससे ये जल्दी हो सकता है कि IIM वाले जल्दी बिल्डिंग खाली कर दे हमारी अगर बच्चे डराने लग पड़े तो और एक हम रमन मैम को बहुत तंग करते थे रेशव को इन कर दो गलती से लीव हो गया कर दिया सर कर दिया हाँ जी सर आ गया और बताइए जी और कोई स्टूडेंट अपना शेयर करना चाहता हो फीडबैक कोई एक्सपीरियंस अपने कॉलेज डेज के हाँ जी सर मैं करना चाहती हूँ जी प्रवीण प्लीज सर मेरे एक सजेशन है कि जैसे मैं एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मैं ये चाहती थी कि एप्टीट्यूड की क्लासेस हों पर वो कॉलेज की साइड पे से नहीं हुई तो ये एक था मेरा पॉइंट कि होना चाहिए था बिकॉज उसके लिए मुझे आज भी फेस करना पड़ता है प्रवीण आपका बैच 2020 है यस सर 2020 कौन सी ब्रांच है आपकी सर CSC तो जब एम्फेसिस का जॉइंट कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हुआ था तो तब हमने एक 3 दिन की स्पेशल एप्टीट्यूड क्लासेस लगवाई थी एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेन कैंपस में थी तो तब आपने अटेंड नहीं की थी वो क्लासेस यस सर मैंने अटेंड की थी पर मैं सर बहुत ही ज़्यादा एप्टीट्यूड में वीक हूँ इसलिए वो स्टार्टिंग से मतलब एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल मैं अमित सुरीन जी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ in a month if twice we able to organize workshops on communication skills and aptitude it will be helpful for the students and I think even Marginder now you can take up this matter for Amritsar campus thank you beta Praveen anybody else और कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहता हो
मैं एक और चीज Hello. इंक्लूड करना चाहता था हाँ जी गौरव। कि जब हम पढ़ाई करते थे तो सॉरी ज्योति, मैंने आपको कट It's कर दिया। okay, it's okay. You can continue, Gaurav. या मैं यही बता रहा था कि जब हम पढ़ाई करते थे, हमारी ना बुक की पढ़ाई होती, मुझे ये बड़ा रहता था कि यार जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लास में, हमें वो विजुअलाइज हो जाए चीजें कि कैसे होती। जैसे हम कंप्यूटर का पढ़ते थे ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो मैं तेन कहने वो कर नहीं दिया, जूम ते कीता ज्वाइन। ये कौन है? कौन है ये? मेहर सिंह साहब। मेहर सिंह। मेहर इनमें म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। ये बताइए। या मैं यही बता रहा था सर कि हमें ये बड़ा था कि मुझे ये था दिल में कि जो चीज बताई जा रही है वो सामने दिखे। अगर रैम होती है या सीपीयू होता है वो हमें दिखे। मतलब मैं टीचर्स को एक दो बार कहा भी था कि सर कोई ऐसा सीपीयू या पुराना ही हो, हमें पता तो लगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कहाँ पे बसेज हैं, क्या चीज है। बुक में होती थी, हम बुक में वैसे याद करते लिखते थे, बट जब तब भी या यूट्यूब वगैरह पे एक बार हमने कोशिश करी थी कि देखा, फिर मालूम पड़ी चीजें। पर यही मेरा था रिक्वेस्ट कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग है ज्यादा उस पर फोकस करा जाए तो बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। एज अभी बायजूस में है तो यही चीजें हम बच्चों को गाइड करते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग। और अभी मुझे पता लग रहा है कि कॉलेज डेज में जो हम पढ़ते थे उसमें कितनी इंपॉर्टेंट थी प्रैक्टिकल लर्निंग की। तो ये चीज जरूर इंक्लूड करूंगा कि बच्चों को भी हैबिट पड़ जाती है उससे खुद से स्टडी करने की, एंड सेल्फ स्टडी की हैबिट इससे ज्यादा इंक्रीज होती है। बाकी एंजॉयमेंट तो कॉलेज डेज में। यस सर, आई एग्री विद गौरव। ठीक है, डेफिनेटली उसको हम नोट करेंगे। यस सर, ठीक है, डेफिनेटली होगा। जी ज्योति, गौरव को ना पता चल गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे तो मिली नहीं है। सर वही अभी लग रहा है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना बायजूस पे, या जो मतलब पढ़ते हैं जिस तरीके से, अगर हमें पढ़ाया जाता है कॉलेज डेज में, अगर हम अपनी पढ़ाई ऐसे करते तो कितना मतलब मोटिवेशन या जो एक कहते हैं ना रियलिटी पता लग जाती है चीजों की, वो चीज बहुत अच्छे से मतलब मालूम पड़ जाती है। हमारे लिए वो चीज बड़ी अच्छी रहती है फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा सजेशन गौरव, थैंक यू फॉर दैट। यस, ज्योति। जी ज्योति। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हाय। मैं जैसे अभी तो सभी लोग मतलब कॉलेज के गुड्स एंड बैड फेसेस शेयर कर रहे हैं। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी लाइक एक स्टूडेंट के ही खुद के ही बिहाफ पे। लाइक जब जैसे मैं भी अभी 2019 पास आउट स्टूडेंट हूँ यहाँ से, तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जैसे हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह की, चलो हमारे वक्त तो कंपनीज एक दो आई थी और कुछ बच्चे वहां से सिलेक्ट भी हुए थे, और उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं वहां से, तो मैं उनको कुछ कहना चाहूंगी कि जो प्लेसमेंट्स वगैरह में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो वो बाद में थोड़ा सा बहुत बैड फील करते हैं। मुझे खैर शायद बाकियों को पता नहीं है कि वो करते होंगे या नहीं, मैं खुद का बता रही हूँ कि जब मैं ऐसे सिलेक्ट नहीं हो पाई थी तो मुझे बहुत फील होता था कि मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रही हूँ। तो समटाइम्स कभी ना हम ठीक है, हम कॉलेज के बारे में अच्छा सोचते हैं और कभी ना हम कॉलेज को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं हमें ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। एंड रिसेंटली ही मेरी विपू सर के साथ कुछ बात हुई थी, तो तभी मैंने ना अपने ग्रुप में कुछ ऐसा बोल दिया था। आई डोंट नो कि मतलब सर ने वैसे उसके बिहाफ पे नहीं बोला, लेकिन मैंने वो ग्रुप में कुछ बोल दिया था। तो बाद में मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद चाहे जो मर्जी है हमें, मतलब अगर हमें उस वक्त कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा था तो बाद में तो सब कुछ चलो ठीक हो ही गया था। तो लेकिन कभी भी हमें कॉलेज के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए था। या जो मैंने वैसे कॉलेज के रिगार्डिंग नहीं बोला था, बोला तो अपने ही बिहाफ पे था, पर फिर भी उससे मुझे बहुत गिल्ट सी फील हुई उस वक्त कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया है। तो मैं ये शेयर करना चाहती थी कि सीरियसली आई रियली फेल्ट दैट, जैसे कि विपुल सर ने मुझसे बात की और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि उस वक्त ठीक है कुछ नहीं था आपके टाइम तो, अब लेकिन सब कुछ सही है और अब तो आप लोगों को कॉलेज को भी मतलब उनकी अच्छे एक व्यू दिखाना चाहिए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा तो नहीं बोला कि क्यों कर रहे हो उन्होंने कहा कि मतलब अब जो भी है, अब आपका कॉलेज है तो कॉलेज वो आपका ही ना। मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ उसका पहले कुछ और था और आज देखो कितना अच्छा कॉलेज है, लेकिन मैं भी कितना प्राउड फील करता हूँ कि मैं भी उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। और जैसे लेकिन विपुल सर ने मुझे समझाया ना, मुझे बताया, मुझे उनका वे ऑफ टॉकिंग इतना अच्छा लगा सीरियसली। विपुल सर जब हमारे कॉलेज में आए थे, वो कुछ ही वक्त पहले आए थे जब कॉलेज में आए थे, तो चलो स्टडी वगैरह तो उनके साथ हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी ऐसे कम्युनिकेट नहीं हुआ था विपुल सर के साथ। तो जब जिस दिन उन्होंने उस दिन मेरे से बात की तो सीरियसली आई फेल्ट सर
You are the best teacher for me ever. That's it. It was my ये कॉलेज के बाद की मेरी सबसे अच्छी मेमोरी रहेगी सर से जो अब बात की है मैंने, और मैं इसे शेयर करना चाहती थी जस्ट. clap for विपुल सर. नहीं मैंने सर कुछ नहीं किया, बस यही है कि एक रहता है कि बच्चे मोटिवेटेड रहें, है ना, एक्सेल करें, क्योंकि वी फील प्राउड कि जब ये एक्सेल करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट बहुत आगे पहुंचे हैं. No sir, seriously, you are a great. आपने जैसे मुझे समझाया, और मुझे लगता है कि वो चलो स्कूल कॉलेज सब खत्म, अब तो चलो छूट गया वहाँ पे, और वो मेरी आने वाली जिंदगी के लिए वो मुझे इतना मोटिवेट करेगा ना आगे तक. और मैं सीरियसली ये याद रखूंगी कि जो चीजें जहाँ से आपको कुछ मिला होता है ना, अगर वो आपको पूरा भी नहीं मिला, जितना भी मिला है ना, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिंदगी भर तक अप्रिशिएट करना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ज्योति फॉर योर सजेशंस. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप अलुमिनाई मीट में आज स्टार्टिंग से आ गए थे? यस सर, मैं स्टार्टिंग से ही आ गई थी. मैंने कुछ चीजें स्टार्टिंग में बोली थी कि अब जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपके सीवी में आपके साथ लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ा हुआ है. तो इसमें यूनिवर्सिटी अच्छी परफॉर्म करेगी, आपको लोग अच्छा कहेंगे. यूनिवर्सिटी अगर कुछ ठीक नहीं परफॉर्म करेगी तो आपको ठीक नहीं कहेंगे. तो कोई नेगेटिव होती है, ये नहीं होता कि हमें वो कम्युनिकेट नहीं करनी, हमें वो हर हालत में कम्युनिकेट करनी चाहिए, लेकिन वी सपोज टू कम्युनिकेट इट टू द राइट अथॉरिटी. और जो पॉजिटिव चीज है वो हमें हर मीडिया पे कम्युनिकेट करनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली हमारी है. हम अगर ये आगे बढ़ेगी तो हम प्राउडली बता पाएंगे कि हम यहाँ के अलुमनस हैं. तो अभी आपकी प्लेसमेंट हो गई है? यस सर, अभी मैं जॉब कर रही हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग में, चंडीगढ़ में जॉब कर रही हूँ. अभी कुछ फ्रेश ओपनिंग्स भी हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें 3-4 कंपनीज काफी अच्छी हैं. तो मर्गेंदर इज देयर. सर वो अभी दीपक सर वी हैव ऑफलाइन है, लेकिन हमने शेयर कर दिया हुआ है बच्चों के साथ ऑलरेडी. यस्टरडे वी हैव टेकन द डेटा. वो अलुमिनाई के साथ भी शेयर कीजिए, जो अलुमिनाई अभी अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो वहाँ पे अप्लाई करके तो आप अटेम्प्ट कीजिए फर्दर. सर कल हमने डाटा भी शेयर कर दिया है और बच्चों को भी मतलब इन्फॉर्म कर दिया गया सारा लिंक्स वगैरह. राइट. मैं भी इसमें ज्योति बेटा ऐड करना चाहूंगा. ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मेरे को टीच करते हुए. तो जो पहला बैच होता है ना किसी भी कॉलेज में, उसको लगता है मेरे टाइम ये चीज नहीं थी. जो अगला बैच होता है उसको लगता है मेरे टाइम नहीं था. उससे अगला बैच होता है उसको लग रहा मेरे, बिकॉज दिस इज इम्प्रूवमेंट. ठीक है, क्योंकि हर जगह पर इम्प्रूवमेंट होती है. ठीक है, तो दैट्स वाई. ठीक है, जो आपकी फीलिंग थी आपने बहुत अच्छे तरीके से शेयर करी. बट मेरा यही है कि आपको जब भी मुश्किल हो, कोई किसी भी ल्यूमिनाई को मुश्किल हो, कभी भी आप लोगों ने बात करनी हो, यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सर. Srinji, now I will take a leave. मुझे कोई काम था, मुझे निकलना होगा. Thank you so much. Thank you sir. I wish good luck to all the alumni for their future endeavors and request to please stay connected with university and even me. और जो चीजें आप मेरे को 4 सालों से नहीं करवा पाए मेरे से, वो 4 सालों के बाद करवाओ. Keep trying. तो हमें साथ में हाथ मिला के पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाना. अब आपको बर्थडे गिफ्ट पसंद आ गया सर? बर्थडे गिफ्ट तो मैंने खुद मांग के लिया, आपसे पसंद तो नेचुरली आएगा ही आएगा. अब मुझे तो रिटर्न गिफ्ट की टेंशन हो रही है. अब सारे मेंबर्स को आपकी तरफ से ग्रैंड पार्टी चाहिए. बिल्कुल. मर्गेंदर जी भी ज्वाइन कर गए हैं. तो मर्गेंदर जी वो हमें सरीन जी कह रहे हैं कि बर्थडे पसंद आ गया, तो मैंने बोला बर्थडे गिफ्ट तो ठीक है, मुझे रिटर्न गिफ्ट की टेंशन हो रही है. सर रिटर्न गिफ्ट जरा बहुत जल्दी विल प्लान वेरी सून सर. जी. So nice everybody, take care. Okay sir, thank you sir for your time. अब और कोई स्टूडेंट अगर अपना फीडबैक देना चाहता है, मेहर सिंह. तरुण सर कोई कल्चरल आइटम. हेलो. कोई अच्छा एक फीडबैक ले लेते सर मेहर का. उसके बाद करते हैं हम लोग शेयर. जी गुड मॉर्निंग सर मेरे वालों सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ठीक है सर, मैं अपनी यही फीलिंग शेयर करना चाहना कि अज तक मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, क्योंकि मैं 2019 तो पास आउट होया. ठीक है सर, मैं देखता पाया कि अपने जी यूनिवर्सिटी हैगी है, मतलब अपना जो कॉलेज है
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਮਹਿਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪ ਲੋग। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। IKG PTU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बाकी सर मैनू सारे टीचर बहुत पसंद ने, ठीक है सर। मेरा अज भी दिल करता है मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मिला, ठीक है सर। मतलब कि फीलिंग मैं शेयर नहीं कर सकता, मतलब कि तुम समझते पे हो, ठीक है। ते सर मतलब कि मेरी यही रिक्वेस्ट है मतलब कि ज्यादा तो ज्यादा फोकस मैकेनिकल फील्ड दे विच भी किया जाए ताकि मतलब कि मेरे वर्गे जिहड़े बेरोजगार हाले ने, ठीक है, तो उन्हां नूं थोड़ा जिहा मतलब कि सहारा मिल सके। बिल्कुल मेहर, हम लोग डेफिनेटली आपके इस फीडबैक पे काम कर भी रहे हैं और आप प्लीज अपना जो भी सीवी होगा वो जरूर शेयर करें। और भी अगर कोई स्टूडेंट है, अगर किसी को अभी नीड है उस चीज की, अगर कोई अभी जॉब सर्च कर रहा है, तो देयर आर कंपनीज जो अभी भी रेगुलर आ रही है। हाँ मेहर बेटा, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਜੌਬ ਫੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? I think he's left. मैं बेदी जी मैं कंटिन्यू करें, है ना? मेरी आवाज आ रही? जी 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 सर। सर इस तरह ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਪੁਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਕਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੈ ਬੇਟਾ ठीक है। सेकंड 4 डे। और भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि उसको अभी प्लेसमेंट की जरूरत है ना, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। सबके नंबर्स वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, amritsar.ptu.ac.in। वहां पे जाके आप सभी के फोन नंबर्स अवेलेबल हैं, प्लीज कांटेक्ट करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है, अगर वो पास आउट हो चुका है ना और या फाइनल ईयर में है एंड ही नीड्स अ प्लेसमेंट, वेदर वो चाहे वो बिलोंग करता है भिक्कीविंड कैंपस को, बटाला कैंपस को, है ना, चाहे सीएससी ब्रांच, चाहे मैकेनिकल ब्रांच, तो वो अपने सीवी शेयर करें, हम डेफिनेटली उस पे वर्क करेंगे। तरुण सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सीयू शेयर कर लें जो अभी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बिल्कुल सर। इमीडिएटली इस मीटिंग के बाद बच्चों से वो परफॉर्मेंस शेयर हो जो पेंडिंग रह जाए, और उनको वो हम वो अगर कोई और उनको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कुछ ऑनलाइन एप्टीट्यूड, ठीक है, बेदी जी की हेल्प के साथ, हम सारी टीम की हेल्प के साथ इन सब की हम हेल्प करेंगे, ठीक है, किसी भी बैच का बच्चा है। डेफिनेटली सर। और कोई स्टूडेंट अपना फीडबैक शेयर करना चाह रहा हो, कोई अपना कॉलेज के डेज का
एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं। तब तक मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको। And one more thing, sir. Recently, I want to convey one thing कि we have started MTech CSE course at IKG BTU अमृतसर कैंपस। हाँ जी। तो कुछ स्टूडेंट्स जो अभी जॉब नहीं कर रहे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे फ्री बैठने की बजाय वो आगे MTech कर सकते हैं, कि उनके कम से कम एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी एंड थोड़ा रिसर्च वर्क उसमें हो जाएगा। आगे आपको फॉरेन जाना है या कहीं पे जाना है तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगे। जो इंडस्ट्री में है, कई बार गवर्नमेंट सेक्टर है, साइंटिस्ट CED मेरे ख्याल से जहां पर मिनिमम सैलरी आज की डेट में पर मंथ 70-80 हजार रुपए है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज वो अगर लेनी है तो मिनिमम MTech CSE चाहिए होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर, आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं तो प्लीज डू ज्वाइन, ठीक है। आप कैंपस के साथ दोबारा रिलेट भी कर पाएंगे। Moreover, we have attractive scholarships also, like जैसे बीटेक में होती हैं हमारी। क्योंकि जो कोविड का टाइम चल रहा है बेटा, उसमें थोड़ा सा क्या है, जॉब सिनेरियो तो थोड़ा सा है, ठीक है, गड़बड़ है, ठीक है। तो फ्री बैठने से बेटर है कि आपके पास स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी हैं, तो डू जॉइन अ हायर एजुकेशन कोर्स। तो ये मैं कुछ पुरानी पिक्स शेयर कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स की मेमोरीज के लिए, कि ये जो फर्स्ट हमारे पहले 2 बैच थे, मतलब उसका एक बैच की ग्रुप फोटोग्राफ। ये हमारा एक वो पिक है जब हमने मेडल्स जीते थे, सबसे पहला जब हम यूथ फेस्टिवल में गए थे। ये एक उड़ान फेस्टिवल। दिस अगेन आर गिद्दा टीम। ये हमारी जो पहले जो लाइब्रेरी हुआ करती थी आप लोगों के टाइम पे, ये एक जॉइंट कैंप लगा था, और ये कुछ हमने स्टूडेंट्स के साथ मिलके इंटरेक्टिव सेशंस किए थे उनके करियर को रिलेटेड। ये स्टूडेंट्स जो हमारे क्विज के अंदर सिल्वर मेडल लेके आए थे यूथ फेस्टिवल में, ऋषभ एंड अंकित। ये फर्स्ट बैच, शायद उस समय मैं भी अवेलेबल नहीं था, तो ये तब का शायद फ्रेशर या फेयरवेल था। Then this comes the Gidda team, our Bhangra team। सब लोग, आप लोग अपना चेक कर सकते हैं इसको, आपकी अपनी मेमोरीज। ये आपका फर्स्ट बैच इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रो प्रोसेसर की लैब के साथ। ये भंगड़ा टीम, भंगड़ा परफॉर्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मिस्टर शरण अपनी पोएम रिसाइट करते हुए विद फीलिंग्स। ये वन महोत्सव का एस्टेब्लिशमेंट अमृतसर कैंपस के अंदर। अगेन दिस विक्ट्री साइन दैट शोज हमारी कंप्यूटर लैब्स, द कॉन्फ्रेंसेस, ये फ्रेशर्स पार्टी, गिद्दा टीम, दिस सिंगिंग बाय मिस प्रीतिका मलिक। ये पुरानी क्लास जब फर्स्ट बैच था जब हमारा इन 2014, ट्री प्लांटेशन करते हुए फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स। या आपकी क्लास, जो भी यादें हमारे पास हैं हमने उनको बिल्कुल पिरो के रखा हुआ है। तरुण सर, कैन यू प्ले दैट वीडियो बाय डोमिनिक मार्टिन? हाँ जी सर, बिल्कुल। जस्ट अ सेकेंड, दिस वन।
So let's hear it, a song from Dominic Martin. Our alumni. तो ये थे हमारे लीड गिटारिस्ट मिस्टर डोमिनिक मार्टिन, जो हमें बहुत से इवेंट्स में हेल्प करते रहे हैं। हम बाकी अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते रहे हैं गिटार में ना। अब हम अपने स्टूडेंट्स से, बाकी जो जूनियर्स हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उसकी लेगेसी को मेंटेन करके आगे लेके चलें। और कोई स्टूडेंट अपना कोई फीडबैक शेयर करना चाहता हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। तरुण जी, विक्रम सर को एडमिट कर लीजिए। सर रिक्वेस्ट नहीं आई अभी तक सर, एक बार देख लीजिए। हेलो, ग्रुप में डालो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो जी 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 सर। जी सिमरन, जी सिमरन। वो मैंने बताना था कि जो शेयर कर सकती हूँ जो प्रॉब्लम हाँ जी, थी हाँ हमारे जी, टाइम, बिल्कुल। वो स्कॉलरशिप रिगार्डिंग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, वो मैंने बताना था कि जैसे हमारे टाइम प्रॉब्लम आई थी ना, भी वो मैं सोच रही थी भी कल किसी जूनियर के टाइम ना आए वो प्रॉब्लम जो हमारे टाइम आई थी। वो सिमरन, अब हमने उस चीज पे बिल्कुल ही वर्कआउट करते हैं और अभी वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमने ना उसके लिए पूरी टीम ही बना दी हुई है ना। वी हैव अ प्रॉपर कंप्लीट टीम, है ना। आपके टाइम पे मतलब 2-3 लोग ही होते थे। आज की डेट में जो स्टाफ है वो इतना मतलब एक्सेल कर चुका है हमारे पास, है ना। हमारे पास फैकल्टी बहुत सारी न्यू आ चुकी है, हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ सारा आ चुका है ना। तो जिसके अंदर हम लोग अब पूरा सपोर्ट, और स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हमने प्रॉपर हर 10 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटर्स बना रखे हैं, है ना। उनको 4 साल के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो दे कैन टॉक टू देम, है ना। और उनकी बाकियों के लिए हम लोग मतलब मैं हूँ, फैकल्टी मेंबर्स हैं, है ना, कैंपस इंचार्ज सर हैं ना, एवरीवन इज अवेलेबल। वो उस पे ऑलरेडी ही हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट अपना फीडबैक शेयर करना चाहता हो? मेरे ख्याल से आई थिंक सो किसी का कोई कल्चरल वाला पेंडिंग है तरुण जी? सर एक सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ जी, क्योंकि बच्चों ने मेहनत करी है वो वाली भी। वन सर, आई थिंक दैट भंगड़ा, अभी एक भंगड़ा सर पेंडिंग है और एक सॉन्ग, एक सॉन्ग भी है सर। हाँ, वो कर दीजिए। पहले सॉन्ग देन भंगड़ा। हाँ, पहले सॉन्ग कर लेते हैं।
हाँ पत्ता पत्ता जोड़ के रुखां दी हाय संगनी छां हो गई। अज मैनू चढ़ गई जवानी ते बुढ़ी मेरी मां हो गई। अज मैनू चढ़ गई जवानी ते बुढ़ी मेरी मां हो गई। मेरी मां मैनू दुनिया विखा हुण पुत पछाणनों रह गई आ। कदे मोढे चक खड़ाउंदी सी अज गोडियां तो भी रह गई आ। मेरी सट ते मारी फूक सी जो, मेरी सट ते मारी फूक सी जो, मेरे लिए ओही दवा हो गई। अज मैनू चढ़ गई जवानी ते बुढ़ी मेरी मां हो गई। कम कारां वाले हो गए आ हुण माली टाइम नी कड हुंदा। मोह माया दा भी पैड़ा ए भी नहीं बेबे छड हुंदा। सब हौली हौली बदल गया, सब हौली हौली बदल गया। जदों वक्त दी सूई अगां हो गई। अज मैनू चढ़ गई जवानी ते बुढ़ी मेरी मां हो गई। ये थे हमारे गुरशरण सिंह मैकेनिकल स्टूडेंट। और अब एक लास्ट परफॉर्मेंस भंगड़ा। तक लो जी दुनिया रोटेट हो गई, हुंदी हुंदी मैं भी अपडेट हो गई। कहंदी तक लो जी दुनिया रोटेट हो गई, हुंदी हुंदी मैं भी अपडेट हो गई। ओ मैं क्या शहर ने तू पिंडा दा स्टाइल खा लिया। जट दा पजामा मॉडिफाई करके मर जानी कहंदी मैं प्लाजो पा लिया। ओ जट दा पजामा मॉडिफाई करके मर जानी कहंदी मैं प्लाजो पा लिया। मर जानी कहंदी मैं प्लाजो पा लिया। ओ जान मेरी कहंदी मैं प्लाजो पा लिया। ये थे हमारे पासिंग आउट बैच 2020 के परविंदर सिंह जी और सौरव कटारिया जी, और उनके साथ करंटली स्टडिंग स्टूडेंट जगदीप सिंह। हाँ जी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपुल सर से कि थोड़ा सा कुछ अपने शब्द बच्चों के लिए कुछ कहें। उससे पहले सर एक आपके व्हाट्सएप पे मैंने वो सेंड किया मैसेज बाय वन ऑफ आवर जूनियर स्टूडेंट अंजू। जस्ट मैं शेयर करता हूँ सर, तब तक हाँ जी तो वो तब तक आप सर कुछ प्लीज अपने शेयर कर दें जब तक मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सर कुछ बचा ही नहीं है, मैं जितना कुछ था वो मैंने पहले सारे शेयर कर लिए इनके साथ। फोन पे ही मेरे को लगता है काफी बातचीत होगी इन बच्चों के साथ, ठीक है। सो यू आर आवर प्राइज्ड पोजेशन स्टूडेंट्स एंड वैल्यूड एम्बेसडर and we crave for our continued association with you. You are the integral part of our IKG-BDU family, present achievements and future hopes. So keep in touch with us and stay positive and cool. तो मैं यही कहूँगा कि टच में रहना है, जो पुरानी बातें हैं उनको भूल के आगे बढ़ना है, ठीक है। जो कुछ खामियां होती हैं, जैसे अभी हमने कुछ बच्चों ने कहा कि फर्स्ट ईयर में ये नहीं था, है ना, तो अब हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, ठीक है। एंड वी आर कीप ग्रोइंग, हम आगे आगे जाते जाएंगे, अपनी खामियां को दूर करते जाएंगे, ठीक है। तो आपने हमारे साथ टच में रहना है, ठीक है। जुड़े रहोगे तो हम भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे, ठीक है। तो यही मेरा एक मैसेज है सभी को। थैंक यू विपुल सर। विपुल सर मैंने आपको होस्ट बना दिया, प्लीज आप शेयर कर दें वो वीडियो। जस्ट सर आई एम शेयरिंग। So I'm playing this message by Anju Sohota.
सर वॉइस नहीं आ रही है, एक बार दोबारा करेंगे? वॉइस नहीं आ रही? हाँ जी सर। सर जब स्क्रीन शेयर करें नीचे ना कंप्यूटर ऑडियो का होगा वो तो ऑन है सर। तो विपुल सर आप सीधा ही मोबाइल पर ऑन कर दीजिए, हमें ऑडियो सुनाई दे सर रहा है। मैंने वहीं से ऑन किया डायरेक्टली। अदरवाइज सर वी विल सेंड दिस वीडियो ऑन दिस alumni group. ठीक है, डन। Fine sir, fine. Thank you sir. Now I would like to request our honorable campus in charge sir, Dr. Amit Sreen sir, कि प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स और अपने एक्सप्रेस करें सर, जो आपके कोऑर्डिनेशन के अंदर सारे डायरेक्शंस के अंदर ये एक एल्यूमनाई मीट करवाई गई, उसका प्लीज हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी प्लीज सर। Thank you Tarun ji. Respected members, dear students, now it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion of IKG PTU Amritsar campus first alumni meet, and that is online alumni meet. Okay, first of all, I on behalf of IKG PTU Amritsar campus extend my heartiest gratitude and thanks to our honorable vice chancellor Professor Dr. Ajay Kumar Sharma ji for sparing time from his extremely busy schedule. Thanks sir, thanks a lot for always motivating us. A big thank you to our campus director Dr. Neelkant Grover ji, who was not available here due to his busy schedule. Again, I want to thank to Shri Navdeepak Sandhu ji. I suppose that he liked his birthday gift. He, along with Dr. M.S. Bedi ji, giving lots of placement opportunities to students in various reputed companies. Latest example, Rishabh and Gaurav. The event was not possible without the untiring efforts of our organizing team. A very special thanks to Dr. Marginder Singh Bedi ji, Assistant Director Corporate and Alumni, Dr. Vipul Sharma ji, Head of CSC, and Mr. Tarun Kunodia ji, Programmer, Head Admin Office. A big thank you to our organizing team for organizing such a good event. Thanks to other members of IKG PTU Amritsar campus for always supporting such events. Last but not the least, our achievers, our stars, our star performers of the day, our proud alumni. The event was held specially for you. Thanks a lot for your participation. I, as campus in charge, promise that we will organize such events in future also. After COVID, offline also. Your feedback is very important for the growth of campus and for your juniors. Thanks again, thanks to all. I'm feeling really very emotional जब seniors बात कर रहे थे, अक्षय, सिमरन, ऋषभ, ठाकुर, ठीक है, ये सब ने बात करी। शरण बेटा गेट वेल सून, ठीक है, शरण से मेरी कल फोन पर बात हुई। तो आई एम रियली फीलिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, आई एम फीलिंग रियली वेरी इमोशनल टुडे, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रगल आप लोगों ने भी बेटा 17 में देखा हुआ है वो मैंने भी यहाँ देखा हुआ है। पर जब से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने ज्वाइन किया है, ठीक है, और मेरे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली, और जो मेरे को बहुत ही अच्छी टीम मिली हुई है, ठीक है, जो ऋषभ, गौरव, आप लोग जॉब कर रहे हो यहाँ पर, जो भी बच्चे जॉब कर रहे हैं, आप सब समझ रहे हो कि टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला आप लोग अपनी कंपनीज में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये कैंपस और ग्रो करेगा। आप लोगों की हमें हेल्प चाहिए होगी इसको ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। जैसे सिमरन ने बोला, मेरे ख्याल से बच्चा वो TCS में अभी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने जूनियर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकता है जब वो और सीनियर बनेगा फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ओके, सो अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एट द एंड ऑफ द दिस इवेंट आई जस्ट लाइक टू शेयर, मैं बहुत सारे इवेंट में शेयर करता हूँ,
ठीक है, मेरी एक लिखी हुई पोएम है, 2 लाइन्स फिर से शेयर करता हूँ कि चल 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 तू अपनी राह चल, रुकना नहीं, थकना नहीं, मुश्किलों से डरना नहीं। ठीक है, तो हर मुश्किल को नाकाम बनाता चल, चल 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 तू अपनी राह चल। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका साथ रहेगा तो डेफिनेटली हम चलेंगे, हम दौड़ेंगे, हम उड़ेंगे। और इन्हीं लाइनों के साथ कि वक्त के पन्ने पलटकर फिर वो हसीन लम्हे जीने को दिल चाहता है। कभी हंसा करते थे सब दोस्त मिलकर, आज उन्हें साथ देखने को दिल तरस जाता है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं सभी का अलविदा कहता हूं, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और आगे चल के हम टच में रहेंगे सबके साथ। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, हम आगे चल के अपनी टॉक्स करते रहेंगे, ऐसे से कुछ इवेंट्स करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू विपुल सर, थैंक यू बेदी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू नवदीपक सर, थैंक यू अमित सरीन सर, थैंक यू कलसी सर, प्रभ किरण मैम, और especially our honorable vice chancellor sir Dr. Ajay Kumar Sharma ji for giving this opportunity to our wealthy students, and thank you all. Thank you Tarun ji, all the best beta, thank you, all the best to all. Thank you sir, thank you Bedi sir, thank you Tarun sir, thank you Srin sir.